Hello students, so welcome again to the next lecture, that is the lecture number 6 of group 15, that is the nitrogen family. We terminated our last lecture at the industrial methods of preparation of ammonia, that is the Haber process. So today we will start our lecture with the laboratory preparation of ammonia. So laboratory preparation of ammonia. In laboratory, ammonia can be prepared by a number of methods. The first method for preparation of ammonia is by reaction of ammonium salts with the alkalis, that is NaOH, KOH, etc. For example, if we heat ammonium chloride with NaOH, we will get ammonia, which will be evolved as a gas plus NaCl plus H2O. This is the first way of getting your ammonia. Similarly, you can also heat ammonium sulfate with NaOH. Again you will get ammonia plus sodium sulfate plus water. Ammonium can also be obtained by heating your ammonium chloride with lime water, that is calcium hydroxide. If you heat it with lime water, you can get 2 molecules of ammonia plus CaCl2 plus 2H2O. So this is the method, the first method of preparing ammonia in laboratory, that is by reaction of alkalis with your ammonium salt. The second method of laboratory preparation is by hydrolysis of nitrides. Metal nitrides, when they are hydrolyzed with water, they give ammonia. For example, if we take up magnesium nitride Mg3N2 and hydrolyze it with water, you will require 6 water molecules. You will get 3 MgOH whole twice plus 2 NH3. You will get this. Similarly, if we heat aluminum nitride with water, then you will get AlOH whole thrice plus NH3. You can balance it, 3 hydrogen and 3, 6 hydrogen, 3 water molecules will be required. So these are the methods of preparing ammonia in laboratory. Now let us come to the structure of ammonia. The next topic of this is structure of ammonia. In ammonia, the central nitrogen atom is sp3 hybridized. You know, structure of ammonia, the electronic configuration of nitrogen is, atomic number 7 is 1s2, 2s2, 2p3. So in the valence shell of nitrogen, there are 2 electrons in the 2s orbital and 3 electrons in the p orbital, 2p orbitals. In ammonia, all these 4 orbitals, 1s and 3p, they will hybridize to give sp3 hybrid orbitals. And as you know, the number of hybrid orbitals will be equal to the number of combining orbitals. So we will have 4 sp3 hybrid orbitals. हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और
इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से आपका 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो दे विल बी फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड, दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड with hydrogen, and the 4th orbital will be having a lone pair of electron. चौथे ऑर्बिटल में हमारे पास क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. So the structure of this will be pyramidal in nature. आपकी अमोनिया में दिस इज द नाइट्रोजन एटम, देर इज वन लोन पेयर इन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, देर इज फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन, एंड ड्यू टू दिस lone pair bond pair repulsion, here the lone pair bond pair repulsion is there, similarly here lone pair bond pair, and here the bond pair repulsions are there. So because bond pair repulsions are smaller than lone pair bond pair, so these hydrogen will be pushed slightly inward, and your ammonia will be having pyramidal geometry like this. The bond angle, नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज में 109 डिग्री 28 मिनट्स. दैट एंगल विल रिड्यूस बाई से इट विल गो टू 107 के आसपास चला जाएगा ये एंगल कुल मिला के. और इन दिस वे यू विल बी हैविंग ए pyramidal geometry फॉर अमोनिया. So this angle, hydrogen angle will be reduced to 107 degree, and this bond length will be approximately 101 picometers. This is the bond length, and the bond angle will reduce to 107 degree. So this is about the structure of nitrogen. Next is your properties of ammonia. So first of all we will be taking about the physical properties of ammonia. Physical properties. So physical properties में first is जो हमारी अमोनिया होती है, it is a colorless pungent smelling gas. Colorless pungent smelling gas. So first property is it is a colorless pungent smelling gas. Second property is it is lighter than air. It is lighter than air. Air से हल्की है ये, having vapor density equal to 8.5 and density of nitrogen is approximately 0.68 gram per cubic centimeter. So density is 0.68 gram per cubic centimeter and vapor density is 8.5, lighter than air. It is highly soluble in water. Highly soluble in water. पानी में ये बहुत ज़्यादा घुलेगी, बहुत ज़्यादा. क्यों घुलती है पानी में ज़्यादा ये? बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देती है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड दिस अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. पानी के अंदर ये इतनी ज़्यादा सोल्यूबल है दैट वाटर कैन डिजोल्व
approximately 1000 times the volume of ammonia compared to its own volume। कहने का मतलब यह है कि वाटर का अगर आप 1 लीटर लें तो उसमें आपकी 1000 लीटर के आसपास अमोनिया घुल जाएगी। सो दिस इज हाईली soluble। फोर्थ प्रॉपर्टी इज बिकॉज it is having intermolecular hydrogen bonding between molecules of ammonia, so it is easily liquefiable. It is easily liquefiable with by application of pressure, by application of pressure। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अमोनिया को आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। और कोई पूछे वाई अमोनिया इज इजीली लिक्विफाइबल, तो रीजन बीइंग इज जैसे अमोनिया यहाँ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, वैसे दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर ऑलरेडी हाई, सो इट इज easy to liquefy। Fifth one, boiling point of ammonia is 243 Kelvin। It is 243 Kelvin and melting point is your 198, melting point is 198.4 Kelvin। So this is the melting and boiling point of ammonia। So these are the properties which are the physical properties of ammonia। Now let us come to the chemical properties। Chemical properties of ammonia। The first property which we are going to discuss is that is basic nature। Basic nature, ammonia is basic in nature and it can combine with acids to form salt। जैसे अमोनिया को HCl के साथ रिएक्ट कराएं, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। If we allow ammonia to react with sulfuric acid, you will get ammonium sulfate, NH4 whole twice SO4। So it reacts with your acids to form salt। Apart from this, due to presence of lone pair, due to presence of lone pair on nitrogen atom, ammonia also act as Lewis base, also act as Lewis base। ये Lewis base की तरह भी काम करेगा और इसलिए ये Lewis acids के साथ कंबाइन करेगी और it will be forming an adduct। For example, this is your ammonia। If it combines with Lewis base, that is BF3, an adduct is formed by donation of lone pair of nitrogen into the vacant orbital of boron trifluoride। So it will be acting as a Lewis base also। This character can also be exhibited by formation of complexes। जैसे आपके डी ब्लॉक के आयंस हैं, जैसे सिल्वर आयन है, इट विल कंबाइन विद अमोनिया टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस, इस सारे पे +1 कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना कहलाता है। ये हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद इसको। क्यूप्रिक आयन के साथ कंबाइन करेंगे 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इट विल बी फॉर्मिंग अगेन a complex। So this is also an acid base reaction। This is also a acid base reaction, but now the ammonia is acting as a Lewis base। The next property of ammonia is reaction with chlorine। Reaction with chlorine। क्लोरीन के साथ आपकी अमोनिया जो है दैट एक्ट इन 2 डिफरेंट वेज।
and that reactant product that depends upon the relative amount of ammonia and chlorine. अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनिया की रिएक्शन कराएं क्लोरीन के साथ, 8 अमोनिया प्लस Cl2, it will give you 6 ammonium chloride NH4Cl plus it will give you N2. So your 3 chlorine will be reacting over here. Your ammonia is in excess. अगर हम excess of chlorine लें NH3 plus Cl2 and this Cl2 is taken in its excess, then it will be forming NCl3 plus 3HCl. 3 molecules of chlorine will be again utilized in this reaction. Bromine also react with ammonia in a similar manner like that of chlorine. बिल्कुल क्लोरीन की जगह अगर Br2 लगा देंगे तो आपकी सेम रिएक्शंस होंगी, सेम. बट रिएक्शन विद आयोडीन is different than other halogens, that is chlorine, bromine and iodine से different है. अगर हम अमोनिया की रिएक्शन कराएं आयोडीन के साथ NH3 plus I2, then it will form Ni3 NH3 plus 3Hi. ये बनेगा iodate of ammonium iodide, that will be formed. And this compound I have already told कि ड्राई स्टेट के अंदर ये थोड़ा सा भी शेक करने पे एक्सप्लोड कर जाता है. इट इज ए माइल्ड एक्सप्लोसिव, इट इज ए माइल्ड एक्सप्लोसिव, हल्का सा एक्सप्लोसिव है ये. ड्राई स्टेट में, सॉलिड स्टेट में जर्क को बर्दाश्त नहीं कर सकता. सो इट विल बी डिकम्पोजिंग. इसकी रिएक्शन हमने कल लिखा दी थी तो ये ध्यान रखना है. थर्ड रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस for ammonia is, that is oxidation reactions. Oxidation reactions. Ammonia can undergo oxidation with a number of oxidizing agents such as cupric oxide, oxygen, etc. तो अगर हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन करें विद क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अमोनिया की ऑक्सीडेशन करने पे वी गेट कॉपर प्लस N2 प्लस H2O. अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन गैस. बैलेंस कर सकते हैं आप. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन. अगर हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज प्लेटिनम, एट ए टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1070 केल्विन, यू विल बी गेटिंग NO प्लस H2O. नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा. अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं. आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन दैट, डूइंग दैट. ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड मेथड. ओस्टवाल्ड मेथड से HNO3 बनाने के लिए हम इसी रिएक्शन का यूज करते हैं. और इट कैन रिएक्ट विद मेटल्स आल्सो. So next properties are reaction with metals. The fourth property is reaction with metals. metals के साथ हमारी रिएक्शन कर सकती है अमोनिया की. एमाइड्स बनते हैं. जैसे अगर हम सोडियम मेटल को हीट करें अमोनिया के साथ, you will be getting
सोडियम अमाइड 2NaNH2 एंड हाइड्रोजन विल बी इवोल्व, साथ में आपकी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। अगर हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएं एक्वस सॉल्यूशन में विद सर्टेन मेटल सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन कराएं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है अमोनिया प्लस वाटर का सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड, क्या बन जाएगा आपका, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और प्लस निकलेगी अमोनिया। HCl और अमोनिया क्योंकि एसिड बेस है तो वो दोबारा रिएक्ट कर जाएंगे, तो आप यहां पे अमोनियम क्लोराइड लिख लीजिए, 3 अमोनियम क्लोराइड। दिस फेरिक हाइड्रोक्साइड इट इज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। In fact, this reaction is used in क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। जब हम साल्ट एनालिसिस करते हैं तो वहां पे थर्ड ग्रुप में हमारे पास आयरन, एल्युमिनियम, क्रोमियम ये सब होते हैं, इन सब के हम हाइड्रोक्साइड्स ही प्रेसिपिटेट करते हैं इन योर बेसिक मीडियम। अगर यही रिएक्शन हम एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ करेंगे, AlCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड 3 molecules, you will get AlOH whole thrice plus 3 ammonium chloride, and this is a gelatinous white precipitate। ये gelatinous white precipitate है, थर्ड ग्रुप के अंदर, ये थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से क्रोमियम क्लोराइड के साथ करेंगे, then you will be getting green color precipitate of chromium hydroxide। So this is the reaction with hydroxides। अगर हम जिंक के साथ करेंगे तो व्हाइट बनेगा आपका, कॉपर के साथ करेंगे तो ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसके बाद एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट। दिस इज आल्सो द टेस्ट फॉर अमोनिया। रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट, रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट इज K2HgI4। This is your Nessler reagent, K2HgI4 plus ammonia। Reaction will be carried out in basic medium plus 3KOH। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम तो हमारे को प्रेसिपिटेट बनेगा NH3 HgOHgI प्लस 7Ki प्लस 2H2O। ये जो कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज योर रेडिश ब्राउन इन कलर और इसको मिलन्स बेस बोलते हैं। इट इज योर मिलन्स बेस और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है ये? रेडिश ब्राउन इन कलर। So next reaction of ammonia is reaction with your chloroplatinic acid, reaction with chloroplatinic acid
ये एक मेथड भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज योर क्लोरोप्लेटिनिक एसिड इज H2PtCl6, इसके साथ ये क्लोरोप्लेटिनिक एसिड है, सिर्फ अमोनिया का अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट बन जाता है H2PtCl6, तो ये बन जाएगा NH4PtCl6, दैट इज अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट. These are the properties of ammonia, reaction of ammonia you can say. Now for uses, ammonia is used as a refrigerant. आजकल यूज नहीं करते, पुराने ज़माने में रेफ्रिजरेटर में अमोनिया ही यूज़ करते थे कूलिंग के लिए, बिकॉज अमोनिया इज हैविंग वेरी हाई हीट ऑफ इवेपरेशन. इसको इवेपरेशन के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, सो इट वाज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर. पुराने ज़माने में इसको प्रिंटिंग में भी यूज़ करते थे, फोटोस्टेट में. आज की डेट में अमोनिया प्रिंट बोलते थे उनको. बड़े बड़े प्रिंट आज भी अमोनिया प्रिंट ही निकलते हैं, क्योंकि कोई भी फोटोस्टेट इतनी बड़ी फोटोस्टेट करने वाली नहीं बनी है जो बड़े बड़े नक्शों को फोटोस्टेट कर रखे. तो अमोनिया प्रिंट भी करते हैं हम इसको, ठीक है. लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज़ करते हैं हम इसको. इट इज़ यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम अमोनिया का. वी कैन आल्सो यूज इट टू फॉर्म यूरिया, विच इज़ आल्सो अगेन ए फर्टिलाइजर. वी यूज इट टू प्रिपेयर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज कैन, विच इज़ ए वेरी गुड फर्टिलाइजर्स. तो वो सारे के सारे इसके अमोनिया के यूजेस हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है वो 3 ऑक्सो एसिड्स बनाती है. हाइपोनाइट्रस एसिड, दैट इज H2N2O2, विच इज़ नॉट मच नोन बिकॉज इट इज़ ए वेरी वीक एसिड एंड इज स्टेबल ओनली इन सोल्यूशन. सिर्फ सोल्यूशन में स्टेबल है ये, और ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है ये. डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, अपने साल्ट्स के अंदर. साल्ट्स फिर भी थोड़े बहुत इसके आपको दिखाई दे जाएंगे, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट. 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हाइपोनाइट्रस एसिड, दैट इज दिस इज योर ट्रांस आइसोमर and second one is your cis isomer. So trans और cis 2 आइसोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये. दिस इज योर हाइपोनाइट्रस एसिड. आपने ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है +2 की एग्जामिनेशंस के अंदर, और बेसिकली एनसीईआरटी में इनके प्रिपरेशन वगैरह दिए भी नहीं हुए, सिर्फ हम HNO3 की बात करेंगे. द सेकेंड एसिड इज योर नाइट्रस एसिड, विच इज आल्सो ए वेरी अनस्टेबल एसिड. इट इज आल्सो नोन टू फॉर्म नाइट्राइड्स विच आर स्टेबल. इसके जो साल्ट हैं वो स्टेबल हैं. नाइट्राइड्स बोलते हैं इसके साल्ट्स को. हाइपोनाइट्रस एसिड के साल्ट को हम जो है वो क्या बोलते हैं, नाइट्राइड्स बोलते हैं, और दे आर नोन इन सॉल्यूशन. इट इज़ आल्सो ए अनस्टेबल एसिड. इसके अंदर क्योंकि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें नाइट्रोजन की तो +1 +X माइनस और इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +3. तो ये +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ये नाइट्रिक एसिड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो क्योंकि नाइट्रिक एसिड में +5 से हम आगे की कोई नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, तो ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आ सकता है. तो जब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा. तो नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है. इट इज़ नॉट ए रिड्यूसिंग एसिड, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड. HNO2 कैन एक्ट बोथ लाइक एज एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एसिड, क्योंकि ये +3 से +5 में भी जा सकता है और +3 से नीचे भी आ सकता है, 0 +1 इनमें भी आ सकता है. सो दैट इज आल्सो ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एसिड. इसके साल्ट नोन है. जनरली इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस नहीं करते हम, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो जो बेरियम नाइट्राइट होता है
इसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं देन यू कैन गेट योर नाइट्रस एसिड प्लस बेरियम सल्फेट एंड दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर HNO2. रीजन बीइंग जो बेरियम सल्फेट होता है दैट इज बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर कैन बी वेरी इजीली फिल्टर्ड ऑफ. इसको बड़ी आसानी से फिल्टर ऑफ कर देंगे हम क्योंकि ये आपका नीचे बैठ जाएगा एज ए प्रेसिपिटेट, तो इसको हम फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस इज द हाउ वी कैन प्रिपेयर नाइट्रस एसिड, बट वी आर नॉट गोइंग टू मच डिटेल ऑफ दिस एसिड बिकॉज its preparation and properties are not included in our syllabus. So next acid is your nitric acid. But before going to talk about the nitric acid, we should discuss the structure of this HNO2. इसका जो स्ट्रक्चर है वो है like this, N and then double bond O. ये सिर्फ एक H प्लस दे सकता है तो मोनो बेसिक एसिड है ये आपने ध्यान रखना है. द थर्ड एसिड इज HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड. ये जो एसिड है नाइट्रिक एसिड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन और इसको हमने पढ़ना भी डिटेल में है नाइट्रिक एसिड को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड laboratory preparation. In laboratory it is prepared by action of sulfuric acid on सोडियम और पोटाशियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट ले लीजिए, पोटाशियम नाइट्रेट ले लीजिए, उसके ऊपर आप रिएक्शन कराइए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की. यू विल बी गेटिंग वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड. दोज वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड देन कैन बी कंडेंस्ड टू गिव यू नाइट्रिक एसिड. जैसे NaNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, it will form Na2SO4 plus 2HNO3. So this is how we will be preparing nitric acid in the laboratory. इसके अंदर हम करते क्या हैं, इसका अगर हम डायग्राम प्लॉट करें, हमारे पास एक ग्लास की रिटोर्ट होती है इस टाइप की स्पेशल फ्लास्क है. यहाँ पे हमने हमारे रिएक्टेंट्स लेने हैं. इसके नीचे ट्राइपॉड स्टैंड लगाते हैं हम टू हीट इट. यहाँ से हम इसको हीट करेंगे और इसको हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में डालते हैं और सील कर देते हैं. इसके ऊपर यहाँ से पानी डालते हैं, वाटर टैप बना दीजिए आप. यहाँ पे टैप से पानी डालेंगे इसके ऊपर, तो पानी से हम इसको ठंडा करेंगे. तो जो आपके वेपर्स हैं नाइट्रिक एसिड के वो जो हैं कंडेंस हो जाएंगे टू गिव यू द नाइट्रिक एसिड, लिक्विड नाइट्रिक एसिड. यहाँ पे आपका KNO3 या NaNO3 प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है. ये हीटिंग है हमारी, यहाँ से हमारे वेपर्स बाहर आएंगे, वो ठंडे हो जाएंगे, यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड कलेक्ट हो जाएगा. I am not drawing these diagrams very neat and clean. I am just giving you an idea. You can draw it at your own. There is no problem in that. मैं just आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं लैब में. Detail is not there. So this is how we will be preparing it in the lab. So now let us discuss the manufacturing of nitric acid. इंडस्ट्रियल स्केल पे नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाएंगे. इंडस्ट्रियल स्केल पे नाइट्रिक एसिड को आजकल हम बनाते हैं जिस मेथड से, दैट मेथड इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस. दैट इज कॉल्ड योर ओस्टवाल्ड प्रोसेस. ओस्टवाल्ड प्रोसेस में बेसिकली व्हाट वी डू इज
We oxidize ammonia. In the first step, we will be oxidizing the ammonia in the presence of a catalyst platinum. प्लेटिनम गैस करते हैं, एक एक्चुअली अमोनिया और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेते हैं, एंड दैट अमोनिया एंड ऑक्सीजन मिक्सचर इज देन पास्ड ओवर ए प्लेटिनम गैस विच इज़ प्री हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1070 Kelvin, और समटाइम्स वी कैन आल्सो राइट इट एज 1100 Kelvin व्हेन इट इज़ ऑक्सीडाइज टू योर नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड वाटर. अभी हमने किया था, मैंने वहाँ पे बैलेंस नहीं की थी, यहाँ पे करेंगे 4NH3 + 5O2 प्लैटिनम 1100 Kelvin या 1070 Kelvin कुछ भी लिख लेना. यू विल बी गेटिंग 4NO प्लस योर 6H2O. आपकी हाइड्रोजन 12 पूरी हो गई, ऑक्सीजन आपकी है 10, 4 और 6 10 और 4 नाइट्रोजन. सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. हम पहले स्टेप में यही करते हैं कि अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं बाय पासिंग इट ओवर ए हीटेड गेज ऑफ प्लैटिनम. नाउ दिस NO फॉर्म्ड इज अगेन मिक्सड विद एयर. इसको फिर एयर के साथ मिक्स करेंगे. एयर के साथ मिक्स करके वी विल कूल इट एंड देन वी विल बी गेटिंग योर नाइट्रिक एसिड. कैसे बनेगा नाइट्रिक एसिड? NO, एयर के साथ इसको कूल किया, वाटर मिक्स किया, एंड यू विल गेट 2HNO3. आपका HNO3 बन जाएगा. आप इसको लिखना चाहें तो 3 स्टेप करना चाहें तो इस स्टेप को 2 स्टेप में तोड़ सकते हैं आप. यू कैन राइट इट एज 2NO + O2 टू गिव यू 2NO2. ये आपका दूसरा स्टेप हो गया. इसमें हमने ऐड किया वाटर प्लस H2O 2HNO3. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस NO को ऑक्सीडाइज किया NO2 में, एंड देन दैट NO2 इज एब्जॉर्ब्ड इन योर वाटर मॉलिक्यूल. So this is your Ostwald method of preparing nitric acid. I am not going in detail how this process is carried out in the industry because that is not discussed in your NCERT also. ये वहाँ पे भी नहीं डिस्कस की गई है. लेट मी चेक. अगर वहाँ डिस्कस किया होगा तो हम भी डिस्कस कर देंगे, नहीं तो आई थिंक we need not to go in details of that your industrial procedure for manufacture of ammonia, that is nitric acid. So I think it is not there in this book also. So we are just giving you the outlines how it is prepared in the laboratory. So you just go by that. Need not to go further in detail of this. So this is how the nitric acid is prepared industrially. Now next topic is properties of nitric acid, which I am not going to take up in this particular lecture. इस लेक्चर में नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरी नहीं होंगी. उसमें 2-3 चीज़ें समझानी हैं. सिर्फ इनऑर्गेनिक के बारे में ये जो कंसेप्ट है कि भाई रिएक्शंस हमने रटनी है, तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शनों को सारी को रटने की ज़रूरत नहीं है. आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द मेथड्स बाई विच यू विल बी नोइंग हाउ इट विल बिहेव विद ए पर्टिकुलर मेटल और विद ए पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है. सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन टुमारोज लेक्चर. सो थैंक यू वेरी मच.